How are you? I hope so. All of you are fine. Welcome to my channel, Blue Star Academy for English. And today we have new topic for class 12th, the last lesson by Alphonse Daudet. Right? Okay, students. So I hope so. I have uploaded many videos from class 12th, and I hope so. Okay, all video will be liked by you. Before starting the video, just I want to clear that most of students have told me that, sir, please explain in Hindi as well as in English. So, in this section, I will explain in both languages, Hindi and English. Right? I request to all of you, please comment, share, and like my video. And okay, without wasting your time, I am going to start the chapter. Okay, firstly I want to give you the brief introduction about the last lesson. Okay, firstly about the author. He was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and he was also a short storyteller. Or this story was set when there was a war happening between France and Persia. Persia currently name is Germany, or that war was happened between 1870 to 1871. Or in this war, what happened? If France was defeated by Germany, you can say Prussian army. Or now France was under the control of Germany, right? अब लास्ट लेसन चैप्टर के अंदर अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर. इस वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ? इस वॉर का इम्पैक्ट और प्लस दो चीज़ों यहाँ पे सेंट्रल जो थीम है इस स्टोरी का वो ये है. फर्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर इन फ्रांस एंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज दैट टाइम इन फ्रांस. Right? So in this story, firstly we have to focus on the impact of war. Firstly, it impacted on education, right? That means there were two main cities of France, Alsace or Lorraine, were passed into the Prussian hands. यानी कि इन दो शहरों पे एल्सेक और लॉरेन, ये दो शहर जो फ्रांस के थे, तो यहाँ पे प्रूशियन आर्मी का यानी कि जर्मनी के आर्मी का और कंट्रोल हो गया, उसके नियंत्रण में दो शहर चले गए. राइट. सो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ यहाँ पे कि एजुकेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे. तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट ये हुआ कि जर्मनी का अधिकार होने के बाद फ्रांस में वहाँ पे केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाने का ऑर्डर पास हुआ. राइट. सो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी जस्ट एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर विद द हेल्प ऑफ अ टीचर मिस्टर हैमल एंड अ स्टूडेंट लिटिल फ्रांज. राइट. तो लिटिल फ्रांज जो था एक स्टूडेंट है ना, जो कि स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि लिटिल फ्रांज जो था पढ़ने में बड़ा ही लापरवाह था. ही वॉज वेरी केयरलेस स्टूडेंट. और तो उस दिन क्या हुआ कि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. राइट. और ही वॉज वेरी एफ्रेड बिकॉज ही हैड फियर दैट हिज टीचर मिस्टर हैमल will scold him of not learning his lessons because Mr. Hamel had given some homework on participles. Mr. Hamel ने कुछ होमवर्क दिए थे बच्चों को कि आप सभी को पार्टिसिपल्स के ऊपर याद करके आने हैं. यह होमवर्क था. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लिटिल फ्रांज जो था उसको कुछ भी याद नहीं था बिकॉज ही डिड नॉट पे अटेंशन ऑन स्टडीज. तो उसने ये फैसला लिया, यार इसका मतलब मेरा तो जाना ही बेकार है ना. इट वॉज यूजलेस टू गो देयर. सो फर्स्टली he pondered about that it would be far better to stay outside.
of the school. उसका रीजन क्या था? Weather was very warm and bright, as well as he was attracted towards the chirping of the birds. It was very attracting scene and drilling of Prussian soldiers, right? So he thought that it would be far better to stay outside of the school instead of reciting rules of participle in the class, right? तो यहाँ से एक क्वेश्चन arise होता है कि why did Franz want to spend most of his time outside of the class instead of sitting in the class or attending the Mr. Hamill's class? अब फ्रैंक जो है पहुंचता है स्कूल में डरते डरते और वहां पे देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास वो पहुंचता है। अब बुलेटिन बोर्ड में जैसा उसको पता था कि बुलेटिन बोर्ड के अंदर ऑलवेज इट हैड द बैड न्यूज, हमेशा बैड न्यूज हुआ करते थे, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स का, ड्राउट्स का, सुखाड़ पड़ गया या कुछ हो गया, या फिर कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर आ गया, इस तरह के पुराने न्यूज़ होते थे। और जैसा मैंने बताया वो बहुत ही लेट हो चुका था और जल्दी में था, डर भी रहा था। तो उस बोर्ड को पढ़ने वाले, बुलेटिन बोर्ड के पढ़ने वाले वहाँ पे ब्लैक स्मिथ भी थे और अदर अप्रेंटिस, वो भी वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े थे। और जब वो खड़े थे तो उन्होंने जैसे ही लिटिल फ्रांस को देखा वो उस पर कमेंट किए, यानी कि उसका मजाक उड़ाए, बोले बेटा वाई आर यू गोइंग सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अराइव इन द स्कूल टू अटेंड द मिस्टर हैमल्स क्लास। उसके बाद लिटिल फ्रेंच जब वो पहुंचता है वहाँ पे तो कुछ सिचुएशंस कुछ अलग देखता है, क्योंकि यूजुअली जब क्लास स्टार्ट होता था तो वहाँ पे दरवाज़ा खुलने का, है ना, देयर वाज लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन बाय द स्टूडेंट्स, और देयर वाज रैपिंग ऑफ रूलर्स बाय द टीचर ऑन द टेबल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, उसमें चेंज्ड कंडीशंस था क्लास की। क्या सिचुएशन थी? बिल्कुल द क्लास वॉज वेरी कॉम एंड क्वाइट, क्लास बिल्कुल शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है उस तरह क्लास उसके बिल्कुल शांत थे। और क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, दे वर ऑक्यूपाइड देयर सीट्स, और जितने उसके फ्रेंड्स थे सारे पहले से ही बैठे हुए थे फॉर अटेंडिंग मिस्टर हैमल्स क्लास। और only Mr. Hamel was moving in the class here and there, and he was just watching each and every students. अब जैसे ही मिस्टर हैमल देखते हैं फ्रांस को तो उनको तो गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं गुस्से में कहते हैं सेड नथिंग इन एंगर, राइट, और सेड वेरी पोलाइटली दैट मिस्टर लिटिल फ्रांस गो टू सीट and we were missing you or we were without you for starting the class, और आपके बगैर हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए जाइए और सीट पे बैठिए। अब जब वो बैठ गया, लिटिल फ्रांस किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है, वो बैठता है वहाँ पे क्लास के अंदर बैठता है, तो मिस्टर हैमल का अपीयरेंस देखता है। मिस्टर हैमल्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखे हैं, फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप डाल रखे हैं, और ये ड्रेस वो उस समय यूज करते थे जब कोई इंस्पेक्शन स्कूल में होता था या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था, रियल डिक्लेरेशन डेज होता था, राइट। और सबसे बड़ी बात थी, ये देखकर तो सरप्राइज हुआ ही लिटिल फ्रांस, और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात थी कि लास्ट बेंचेज जो हमेशा खाली रहा करते थे, ऑलवेज लास्ट बेंचेज वर एम्प्टी, और ऑन दैट स्पेशल डे ऑन लास्ट बेंचेज the old people, or you can say village people, were studying over there. Even old houser, former mayor, former postmaster, other people, other villagers was also over there. All were looking very sad. They were just watching Mr. Hamel. Or old premier was very attentive in his study. It was looking that he wants to grasp Mr. Hamel's lecture at one stroke. सब कुछ एक बार में वो सीख लेना चाहते हो, राइट। और फिर मिस्टर हैमल ने डिक्लेयर करते हैं क्लास में कि देयर वाज ए ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, दैट वाज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट। सो ऑर्डर के बारे में वो बताते हैं कि
since tomorrow only German language will be taught in the schools of Alsek and Lauren, और जैसे ही और your new teacher will come tomorrow. So these words were just like a thunderclap for little Franz. और उसके लिए एक पहाड़ टूट पड़ा लिटिल फ्रांस के ऊपर. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ही वॉज केयरलेस स्टूडेंट, ही नेवर पेड अ स्टडी ऑन हिज ऑन लैंग्वेज फ्रेंच. कभी वो ध्यान नहीं दिया और उसको ये लगा कि दिस वॉज द लास्ट क्लास ऑफ मिस्टर हैमिल और व्हाट कैन आई डू. उसको फिर पछतावा होने लगा, राइट, काफ़ी रेफिडेंस होने लगा. क्यों रेफिडेंस होने लगा? क्योंकि ही वॉज अनेबल टू राइट एंड रीड हिज ऑन लैंग्वेज फ्रेंच, बिकॉज he had spent more of his time in seeking word sakes or going sliding on the shore, right? और कभी वो स्कूल बुक लेके नहीं आता था, राइट? और वो धीरे धीरे वो सब सिचुएशन ऑफ क्लास में समझ चुका था कि आखिर क्लास इतना शांत क्यों है और ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, राइट? अब मिस्टर हैमिल का रिएक्शन क्या था? यानी मिस्टर हैमिल ने अचानक फ्रेंच को बोला कि बेटा कुछ सुनाओ पार्टिसिपल्स के ऊपर, और वो कुछ भी नहीं सुनाया. तो मिस्टर हैमिल उनको डांटे नहीं. मिस्टर हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, राइट? और उसको सभी एक्सक्यूज याद दिलाने लगे कि बेटा तुम बुक नहीं लाते थे, ये नहीं लाते थे, वो नहीं लाते थे, है ना. और ये भी याद दिलाने लगे कि ये पुअर फ्रेंच मैन है जिनको अपनी लैंग्वेज खुद लिखने नहीं आती और पढ़ने नहीं आती, राइट? और मिस्टर हैमिल जो है रिप्रॉच करने लगे अपने आप को, अपने आप को दोष देने लगे, अपने स्टूडेंट्स को, लिटिल फ्रेंच को कुछ भी नहीं बोले. वो कहने लगे कि एक्चुअली बात यह है कि योर पेरेंट्स आर नॉट सीरियस, नॉट ईगर टू प्रोवाइड यू एजुकेशन और लर्निंग. दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्पिंग यू इन लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, राइट? और एक चीज और बताते हैं कि योर पेरेंट्स ऑलवेज सेंट यू इन द फील्ड्स फॉर अर्निंग द मनी, फॉर वर्किंग इन द मिल्स, फॉर इन द फैक्ट्री, राइट? और वो भी अपने आप को दोष देते हैं. कभी कभी मिस्टर हैमिल ऑलवेज sent their student to water the plants in their garden, in his garden, right? और कभी कभी ये भी बताते हैं कि जब मिस्टर हैमिल कभी कभी मछली लाने के लिए फिशिंग के लिए जाते थे तो लिटिल फ्रांच का पढ़ाई डिस्टर्ब होता था, राइट? उसके बाद अपने कन्वर्सेशन में पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर हैमिल जो है फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं French language is the most beautiful language. It is a very logical language and clear language of all over the world. So all of you Frenchmen must guard it at any cost. Or he also said that कि nobody can slave you unless you know your own language. अगर आप अपना लैंग्वेज जानते हो कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता. That's why you have to must guard it. और मिस्टर हैमिल्स का जो सिचुएशन था क्लास में, और वो ऐसा चाहते थे जैसे कि वन स्ट्रोक के अंदर एक ही बार में सारा नॉलेज, बिकॉज ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर. ही हैड स्पेंट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन फॉर रेगुलरली 40 years ऑफ हिज सर्विस. 40 साल उन्होंने गुजारे थे, राइट? मिस्टर हैमिल जो है क्लास में एक्टिविटी कराना शुरू कर देते हैं और ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड अ सिंगल टाइम इन द क्लास विद हिज स्टूडेंट्स दोज हु वर अटेंडिंग एट दैट टाइम. तो फर्स्टली वो ग्रामर की क्लास लेते हैं, उसके बाद राइटिंग बच्चों से करवाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कुछ कॉपीज देते हैं जिस पे लिखा हुआ रहता है केवल फ्रांस और एल्सेक, लॉरेन है, ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं ताकि एटलीस्ट ये अपने कंट्री का नाम लिखने के लिए जाने. और इस तरह हर जगह पूरे क्लास के अंदर यही कॉपियाँ जो है बिखरी पड़ी रहती है. पूरा क्लास बिल्कुल शांत रहता है, क्वाइट रहता है. और बीटल्स जो बाहर से आते हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि जो पक्षी बाहर से आते हैं, कबूतर यानी पीजन जो है वो भी वेरी लो वॉइस में और कुकू कर रहे हैं. ऐसा लगता हो जैसे पीजन भी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना चाहते हो. उसके बाद मिस्टर हैमिल ने हिस्ट्री के लेसन करवाए, फिर बा बे बी ये सब रटवाए, राइट? और मिस्टर हैमिल का एटीट्यूड क्या था क्लास में जब ये सब सारा कुछ करवा दिए थे, जब बच्चे कर रहे थे, यानी ओल्ड हाउसर वगैरह, बेयर वगैरह, लिटिल फ्रांच और अदर स्टूडेंट जब विलेजर्स कर रहे थे तब उनका ही वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. वो अपने चेयर में चुपचाप बैठे हुए थे. देयर वॉज नो मूवमेंट, राइट? और ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग वॉट एवर इन द क्लास वन आफ्टर अनदर. एक एक चीज को ध्यान से देख रहे थे
दैट मीन्स कि ही वॉज गोइंग टू अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स। और ऐसा लगता था कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड राइट ऑल द थिंग। और वो वायलेट ट्रीज जो अपने गार्डन में उन्होंने लगाए थे, हॉपवाइन लगाया था जो उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, उन सभी चीज़ों को वॉच कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 40 साल गुजारा था और उनकी सिस्टर सारा कुछ पैक कर रही थी क्योंकि उनको नेक्स्ट मॉर्निंग में मूव करना था। और अब लास्ट इंप्रेशन मिस्टर हैमिल का क्या था? जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजा, मिस्टर हैमिल बिल्कुल खड़े हो गए। ही स्टूड वेरी स्टर्नली, बिल्कुल सीधे होकर खड़े हो गए, स्ट्रेट। और he was looking so tall that he could not see earlier, so tall, वो पहले ऐसा लंबा कभी नहीं देखे, बिल्कुल सीधे होकर लाइक दैट खड़े हो गए। और he was looking very pale, he was very nervous, right? और उनके मुंह से वो कुछ कहना चाहते थे, he wanted to address something to his students, but all of sudden choked his throat, अचानक गले में ही फंस गया और he could not say something. That's why just he take the chalk and with all his strength write on the board, Vive la France, Vive la France, ये वर्ड उन्होंने लिख दिया और उसके बाद रुक गए। He stopped and leaned against the walls in repentance. पछतावा उनको होने लगा कि मतलब ये क्या हुआ कि मैं इतना साल सर्विस दिया और किसी लोगों को कुछ नहीं आता। उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाए और सीधा उन्होंने लिखा, नाउ स्कूल इज डिसमिस्ड, ऑल ऑफ यू कैन गो, राइट। सो बेटा, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन। और आई होप सो 100% you will like this video, and if you listen very carefully, that means I hope so your objective question, subjective question will be solved by you, right? At the last, I request to all of you, please share this video with the needy ones, with all the students, with all the friends, right? Or all your relatives, or subscribe my channel Blue Star Academy for English. Okay beta, thank you very much, best of luck. I will see you